Hello guys, welcome back to Insarkari. So today the topic that we're taking up is the income method for calculating the national income or the GDP. So in the previous two lectures, we have covered the other two methods of the value added method and the expenditure method. So this is going to be the third and the last method, which is called the income method. So by again going by the basic understanding of what you can understand by the income method is will be sum totaling all the income earned by the factors of production working in the economy were providing their own services and skills. So that is the simple and the basic idea behind it. So we see we'll be sum totaling the final expenditures in the economy, and that must be equal to the incomes received by all the factors of production. So since हमने तीन methods की बात करी, we'll cover up the third method in today's lecture. So I have told you this thing before as well. जब हम GDP calculation की बात कर रहे हैं by these three methods, तो GDP की जो value आनी चाहिए that needs to be equal or that needs to be same in case of all the three methods. So simply जो यहाँ पे sentence लिखा है कि previous method जो था expenditure method was the name. So sum total of final expenditure की जो value आनी चाहिए that also needs to be equal to the income that is received by all the factors of production. क्योंकि है we're talking about the income method. So इस केस में हम सारे factors of production की income को total करेंगे. So in a way we are saying कि income method की value and the value that we get by the expenditure method that needs to be the same, and that even holds for the value added method as well. So revenues जो earn किए जाएंगे by all the firms we put together that must be distributed among the factors of production in 4 different forms. So basically जो firms हैं वो income provide करती है to the factors of production, and वो income कहाँ से provide करेगी? जो firms revenue earn कर रहे हैं by selling the goods and services in the market. So वो जितना भी revenue earn करेंगे उसका कुछ part in the form of income would be distributed to the factors of production. Now when we see it would be distributed in different forms. Salaries, wages दी जाएंगी laborers को, profits would go to the capital, interest earnings जाएंगी, and then rent would be go to the land. So profits would be earned by the entrepreneurs, interest earnings would go to the capital, rent would go to the land, wages and salaries would go to the laborers. So ये हमने 4 factors of production की बात करी थी. तो इनकी income को हम total करेंगे तो we'll get the GDP value. So this is exactly has been written in the form of formula. So W is for wages, profits, interest, and rent. So sum total of that for all the factors of production which are working in the economy will get the value of GDP. So in a way हम बोल सकते हैं कि जो 3 identities so far we have covered by 3 different methods of income accounting, GDP की value would be equal to the gross value added. This was the value added method through which we got the value of GVA. Then the expenditure method, this was the identity that we understood and the logic behind it. So the value from GVA and the value of the expenditure method would be equal to the value of the income method. So this would be the identity that will hold. Now we'll cover this topic, the income method, in much more detail from another source. So let's switch to that. All right, so let's start with the income method. So we'll be talking about proper method kya hai in detail, steps kya hai, and then what are the precautions that we need to keep in mind. So coming to the first thing, method of calculating. So here in this case, the income method, it measures national income from the side of the payments which are made to the primary factors of production in the form of rent, wages, interest, and profits for the productive services जो factors of production provide करते हैं. So जो national income है, we calculate by simply adding up all the factor incomes generated by all the producing units, and resulting total जो हमें मिलता है, that is the domestic income or the net domestic product factor cost पे. So जब हम GDP की वैल्यू कर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो है दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP इज ग्रॉस. सो नेट को हम ग्रॉस में कन्वर्ट कर देंगे. कन्वर्जन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो बाय एडिंग दीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू द डोमेस्टिक इनकम वी विल गेट द नेशनल इनकम एट
factor cost. So in income method, if we talk about national income, so that is measured at the stage of factor incomes. They are paid out by the enterprises to the owners of the factors of production. So steps की अगर हम बात करें, so these are some of the main steps which are involved in estimating the national income by the income method. So firstly आप identify करोगे enterprises जो factors of production को employ करती है in the production activity. So 4 main factors of production, this we've already seen: land, labor, capital and entrepreneurship are involved in the production process. फिर आप factor payments को classify करोगे different 4 categories में, this we have seen कौन सी 4 categories हैं. Then we estimate the amount of factor payments कितनी की जाती है. तो टोटल फैक्टर इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले अमाउंट पता होना चाहिए कि कितनी उनको फैक्टर पेमेंट्स की जा रही हैं. एंड देन फाइनली विल सम अप ऑल द फैक्टर पेमेंट्स व्हिच आर मेड within the domestic territory so as to get the domestic income at the factor cost. All right, since factor payments की बात कर रहे हैं तो we'll get the value at factor cost. Now इसमें भी if we want to get the value at the market price, so I've told you again उसके लिए what is the conversion that will be doing, or the steps that will be following. So we'll estimate the net factor income from abroad which is added to the domestic income, so that अगर आपको national income निकालनी है तो domestic income में आप simply add करोगे NFIA. NFIA is the net factor income from abroad. So you'll get the national income. Alright, but हम यहाँ बात कर रहे हैं GDP की, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो हमें डोमेस्टिक इनकम तक ही कैलकुलेट करना है. सो प्रिकॉशंस की अगर बात करें, सो करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए बाय द इनकम मेथड वी नीड टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. सो फर्स्ट इज दैट ओनली फैक्टर इनकम्स जो अर्न की जाती है बाय रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, सिर्फ उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं. See, all types of जो transfer incomes हैं, suppose transfer incomes examples includes the old age pension, unemployment allowance, these are excluded. So ये factor income नहीं earn की जा रही है. These are transfer payments जो government कर रही है, but again these are not in the form of income. So these are not the part of the GDP calculation. Second precaution that needs to be kept in mind is that sale and purchase और जो second hand goods हैं, that is also excluded. So इसको हमने in detail discuss किया था कि why second hand goods they are kept out, why intermediate goods they are not calculated. Thirdly, जो imputed rent of the owner occupied dwellings and the value of production for self consumption, that would be included, but जो value है of self consumed services like those of housewives, ये part नहीं है GDP calculation का. फोर्थ इज जो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू इनकम जनरेट की जाती है, ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है, वो भी इंक्लूडेड नहीं होता है इन जीडीपी कैलकुलेशन. एंड लास्टली जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक इनकम टैक्स विच आर पेड बाय द एम्प्लॉयज, जो अपनी सैलरीज में से इनकम टैक्स पे करते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स पे किया जाता है बाय द फर्म्स, बाय द कॉर्पोरेट्स, दैट इज पेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर द फ्रॉम द प्रॉफिट्स जो वो अर्न करते हैं. सो इनको भी हम इंक्लूड करते हैं इन द जीडीपी कैलकुलेशन. सो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड हमने सब्सिडीज की बात करी थी कि किसको कैसे ऐड किया जाएगा, सो दैट जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं फ्रॉम द फैक्टर कॉस्ट टू द मार्केट प्राइस, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम मार्केट प्राइस टू द फैक्टर कॉस्ट. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि टैक्सेस दे आर अ पार्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन. Then we see domestic income and its components. So अब specifically अब हम सिर्फ डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे. अभी हम मिक्स बात कर रहे थे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की. सिंस जीडीपी की हम बात करें तो ऑब्वियसली अब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इनकम है. तो लेट्स फोकस अपॉन calculating the domestic income and what are the components. So again, domestic income, I've told you the distinction between domestic and the national income. So domestic income से वो income है जो within the domestic territory of India produce की जाती है, जो goods सिर्फ इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं within 1 year. All right, then components की अगर हम बात करें तो components यहाँ पे if we try to understand this table or the flow chart, so we see कि compensation of the employees, that is the first thing. So यहाँ पे again in detail हर एक component को explain किया हुआ है, पर पहले देख लेते हैं what are the different components. So components of domestic income, आप उसको net domestic income at the factor cost लिख सकते हो, क्योंकि factor cost again factor incomes हम calculate कर रहे हैं and domestic income हम calculate कर रहे हैं, this would be the net.
सो इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर कंपोनेंट, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लसेस दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी जनरेट हो रही है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रॉफिट्स होता है। और प्रॉफिट्स भी आप डिफरेंट कैटेगरीज में, अगेन कॉर्पोरेट टैक्स पे करोगे, डिविडेंड आएगा, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी आपके पास कॉर्पोरेट्स के पास रहेंगे। एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट एक वन फॉर्म ऑफ इनकम है जो आप प्रॉपर्टी को लीज पे देके जनरेट कर सकते हो, एंड अनदर इज द इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न। थर्ड कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इनको इन डिटेल समझते हैं कि कैसे हम इनको इंक्लूड करते हैं इन दी कैलकुलेशन प्रोसेस। सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, सो ट्रेडिशनली इसको हम वेजेस बोलते, तो इट्स सिंपल कि वेजेस जो दी जाती हैं टू द लेबरर्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, वो हम सिंपली एड अप कर देंगे। एंड इसमें आई हैव टोल्ड यू कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जाते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन प्रोसेस। देन रेंट एंड रॉयल्टी की अगर हम बात करें, तो रेंट एक फैक्टर इनकम है जो अर्न की जाती है बाय द लैंड। तो रेंट इज कॉम्प्यूटेड, एंड जब हम रॉयल्टी की बात करते हैं, तो दैट इज द इनकम जो अर्न की जाती है बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ द सबसॉइल एसेट्स। सो यहाँ पे नोट करने की जरूरत है कि जो डोमेस्टिक इनकम है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द रेंट बट इम्प्यूटेड रेंट भी पार्ट होता है। सो रेंट ऑफ द ओनर जो ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। मतलब कि जो हाउस में ओनर रहता है, तो उसको जो रेंट जनरेट किया जा सकता था, बट सिंस वहां पे ओनर ही रह रहे अपने खुद के हाउस में, तो उसको हम इम्प्यूटेड रेंट की वैल्यू भी उसमें कैलकुलेट करते हैं। सपोज कि अगर सपोज वो घर भी रेंट पे लीज आउट होता, तो उससे जो अमाउंट ऑफ रेंट जनरेट होता, उसको हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। Now coming to royalty, तो it is the income जो earn की जाती है by the landlord for granting leasing rights of subsoil assets and for the use of patents या copyright. So this is treated as a part of the rent if it is not mentioned separately. So if you are not having the different value, question में अगर आपको royalty अलग से mention नहीं है, तो वो part of rent ही consider किया जाता है। But आपको ये ध्यान रखना है कि royalty is also part of the calculation. Talking about interest, तो interest is दी प्राइस जो आपको पे करना पड़ता है, जो भी अमाउंट आप बोरो कर रहे हो। सपोज आप कोई लोन बोरो करते हो, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं, उनको भी कुछ पैसा बोरो करना पड़ता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस। सो इन रिटर्न दे विल आल्सो हैव टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट। सो इंटरेस्ट जो है, दैट इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड, और जो पेमेंट की जाती है, borrower makes it to the lender of the money capital for using the capital for a certain time period. So interest एक factor income हो गया या factor payment है to the capitalist. So this is also obviously this will be a part of the GDP calculation. And national debt पे interest payment obviously जब हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं, तो गवर्नमेंट भी कुछ अमाउंट बोरो करती है ना। हमारे लिए कौन से सोर्सेस से बोरो कर रही है, वो अभी हमारे लिए समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन से सोर्सेस से ज्यादा बोरोइंग है, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, दैट विल बी टेकन अप इन फ्यूचर। बट यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो अमाउंट बोरो कर रही है, गवर्नमेंट को भी कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। एंड अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, एंड देन प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी कंप्यूट किए जाते हैं, बिकॉज प्रॉफिट्स फैक्टर पेमेंट्स है टू द एंटरप्रेन्योर्स। नाउ कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें, तो अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्म्स प्रोडक्शन यूनिट्स में इन्वॉल्व हैं, अपने कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को वो पे करती हैं टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। सो जो नेट प्रॉफिट है कॉर्पोरेट्स का, तीन मेन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स उनको पे करना पड़ता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, एक उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स, थर्ड रिजर्व फंड उनके पास कुछ रहता है जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो जो प्रॉफिट टैक्स है, इट इज द डायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। सो इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी हम बोलते हैं। तो कंपनी पेज दिस आउट द टोटल प्रॉफिट्स, and obviously this is a part of the domestic income since it is actually earned by the company. So profit tax, it is also called the corporate tax. So this is also a part of the GDP calculation. डिविडेंड वो पार्ट है प्रॉफिट का जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पे करती हैं शेयर होल्डर्स को, दिस आई टोल्ड यू। सो रिटर्न्स जो भी हैं ऑन दीज शेयर्स, उसको हम
डिविडेंड बोलते हैं। एंड इट इज अनदर मैटर जब हम डिविडेंड इनकम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर सपोज प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है फर्म, तो डिविडेंड अमाउंट भी ज्यादा रहता है। तो बोल सकते हैं जो प्रॉफिट जाएगा या जो डिविडेंड जाता है टू द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स का ज्यादा प्रॉफिट होता है अगर डिविडेंड की वैल्यू हाई रहती है। So dividend is also a part of the domestic income because it is paid by the company out of the total profit. All right, and then undistributed profits की बात करें तो again जो leftover amount हो गया after the corporate, it pays the corporate tax and the dividend to the shareholders. तो जो amount बच गया out of the total profit, that is called the undistributed profit with the company. And ये कहीं ना कहीं फिर एज अ बफर स्टॉक हम बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ बफर स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसको हम बोलते हैं बैलेंस इज केप्ट एज रिजर्व फंड व्हिच इज नोन एज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सो इसको फर्दर फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट के लिए अगर सपोज देयर इज अ नीड, सो इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर बाय द फर्म और द कॉर्पोरेट। ना मिक्स्ड इनकम की बात करें तो इन केस ऑफ मिक्स्ड इनकम वी सी कि इनकम ऑफ द ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे हम बात करें फार्मर्स की, डॉक्टर्स की, बार्बर्स की, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस जो है लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स होती है, रिपेयर शॉप्स होती है, तो इनकी जो इनकम अर्न की जाती है इनको वी टर्म इट एज मिक्स्ड इनकम। सो दे डू नॉट मेंटेन, कोई प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, तो वी कैन से कि दे आर समवेयर पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो जो बेसिकली इनकी इनकम अकाउंटिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज अगेन they do not maintain proper account and proper records. So even self-employed people, they do not distinguish labor income from the property income. तो proper एक systematic approach नहीं है in case of mixed income. So such incomes they are treated as mixed income because they are mix of rent, wages, interest and the profits. So when some producers they are consuming large part of their own produce, so जो imputed value है of production और जो self consumption उसको भी include किया जाता है GDP calculation। तो ये भी इसमें भी हम imputed value लेते हैं, जैसे हमने imputed rent की अभी बात करी थी। Then talk about income of the public sector, या अगर हम गवर्नमेंट की इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम और एक पब्लिक सेक्टर की इनकम, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम। तो जो हमने अभी तक जितने भी 7 कंपोनेंट्स कवर किए देवर बोथ सेक्टर्स बिकॉज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की बात करी दैट इंक्लूड्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो। सो उसमें हमें दोनों सेक्टर की बात करी थी, बट यहाँ डिस्टिंक्टली अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सेपरेटली इन डिस्टिंक्शन बात कर रहे हैं। सो पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स अगेन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है लाइक रेलवेज डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ्स। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हैं लाइक एलआईसी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स इन सब की इनकम है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। एंड जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है उनको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो ये डिफरेंट टर्म्स है जो हम यूज करते हैं। सो इनकम ऑफ जो गवर्नमेंट सेक्टर है फर्स्टली इट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी और जो एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, एक ये सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट, एंड सेकंड इज द सेविंग्स ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ऑल राइट, so domestic income versus national income, this I've already explained you, so it's a complete repetition, so we'll not take this up. बस यहाँ पे आप आइडेंटिटी देख लो कि डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। देन अगेन अब हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम के बारे में। सो प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स एंड जो ट्रांसफर इनकम्स हैं रिसीव हो रही है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, मतलब यहाँ ट्रांसफर इनकम भी एडअप की जाती है विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। सो हम यहाँ होल प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो प्राइवेट इनकम अगेन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दिस यू कैन सी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हम सारी एडअप कर देंगे जो प्राइवेट सेक्टर अप्रूव कर रहा है। फिर नेट फैक्टर ऑफ इनकम जो अब्रॉड से आ रही है प्राइवेट सेक्टर को वो एडअप की जाएगी, और जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स हैं वो सब एडअप हो जाएंगे।
सो नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट सेक्टर को जा रही है, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम की बात कर रहे हैं, प्लस ट्रांसफर इनकम्स रहेंगी। सो पर्सनल इनकम प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्राइवेट सेक्टर के पास आइडल रखे रहते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट्स जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से ही वो पे किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इनकम ओनली, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स जा रहा है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का प्रॉफिट था। ऑल राइट, सो दिस इज द प्रॉपर आइडेंटिटी एंड कैलकुलेशन फॉर द प्राइवेट इनकम। सो फर्दर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस। सी इन डिटेल हम बिफोर वी हैव कवर्ड डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस, बट यहाँ पे बेसिक प्राइसेस की भी बात की जा रही है, तो एक बार इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो राइट नाउ इंडिया में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट रिपोर्ट्स जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस दोनों पे, बट रिसेंटली रिवीजन किया गया था इन 2015, सो वी हैव रिप्लेस्ड इट विद नाउ जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट विद ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। तो इसलिए हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि बेसिक प्राइसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट। सो पहले हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक प्राइसेस पे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब we are referring or we are adhering to the method of value added method for income accounting, and we are also calculating GDP at market prices as well. So basic prices के बारे में समझें तो इन तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है। So इसको समझने के लिए अब हमें दो और चीजें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट इज नेट प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो इसको ध्यान से रीड करो, यहाँ पे टर्म यूज की गई है प्रोडक्शन, यहाँ पे टर्म यूज की गई है प्रोडक्ट। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्ट टैक्सेस दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट है? नेट प्रोडक्शन टैक्सेस में जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज कोई फर्म बाय कर रही है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स एप्लीकेबल होता है, ये पूरे प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे वो हमारे प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स की बात कही जा रही है, तो नेट का मतलब जितने भी प्रोडक्शन टैक्सेस हैं उसमें से आप सब्सिडी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। और प्रोडक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे सपोज जीएसटी जो करंट टाइम में वी आर सीइंग जीएसटी इज इम्प्लाइड ऑन दी प्रोडक्ट, तो वो एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट टैक्स है। तो प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, जो प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो विल अगेन गेट द नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टैक्सेस। सो फैक्टर कॉस्ट वो इंक्लूड करती है ओनली जो पेमेंट जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उसमें कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। और जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं एट द मार्केट प्राइसेस, तो हमें एडअप करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट पे टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्टेड विद टोटल सब्सिडीज। तो मार्केट प्राइसेस में जब आप ऐड करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्ट्रैक्ट करोगे सब्सिडीज, तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू मिल जाएगी। सो कन्वर्जन की हम डिटेल में बात कर चुके, तो सिंस यहाँ पे मेंशन है, सो विल जस्ट क्विकली रिवाइजिंग थ्रू इट। सो बेसिक प्राइसेस जो है, हम समझ रहे थे बेसिक प्राइसेस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक प्राइसेस कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस के बीच में बेसिक प्राइसेस लाई करते हैं, क्योंकि बेसिक प्राइसेस के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं बट प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं इंक्लूडेड। I would reiterate myself, basic prices में production taxes are a part of it, but product taxes are not a part of it. So ये basic and minor difference है between factor cost, market price and basic price. So if we want to get market price, so हमें add करना पड़ेगा product taxes also टू द बेसिक प्राइजेस, क्योंकि बेसिक प्राइजेस में सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस हैं, तो बेसिक प्राइजेस में प्रोडक्शन टैक्सेस ऑलरेडी पार्ट हैं, उसमें भी आप एडअप कर दोगे प्रोडक्ट टैक्सेस, तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। सो दिस इज how you'll be converting basic prices into the market price. So here we have the identities also. So gross value added, suppose हमारे पास
फैक्टर कॉस्ट भी अवेलेबल है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है टू द बेसिक प्राइस। सो इसमें आप जस्ट ऐड कर दोगे प्रोडक्शन टैक्सेस, ओनली प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड किए जाएंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो आपको बेसिक प्राइस मिलेगा। तो इसका मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में ना तो प्रोडक्शन टैक्सेस पार्ट है ना ही प्रोडक्ट टैक्सेस पार्ट है फैक्टर कॉस्ट में। ऑल राइट, ये सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी इनकम जा रही है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल राइट, तो एक ये डिफरेंस हो गया कि फैक्टर कॉस्ट में ना तो प्रोडक्शन टैक्सेस उसका कंपोनेंट है ना प्रोडक्ट टैक्सेस उसका कंपोनेंट है। बट अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है बेसिक प्राइसेस में, तो सिंपली फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस हम ऐड कर देंगे। और अगर हमें बेसिक प्राइसेस को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो सिंस प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस जो बच गए उसको और ऐड कर देंगे बेसिक प्राइसेस में, और हमें मिल जाएगा मार्केट प्राइस पे वैल्यू। तो इसका मतलब मार्केट प्राइसेस में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्रोडक्शन टैक्सेस भी और प्रोडक्ट टैक्सेस भी। बेसिक प्राइसेस में सिर्फ प्रोडक्शन टैक्सेस अवेलेबल हैं या प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं रहता है। सो क्लियरली एक्सप्लेन यू एंड स्टेटेड कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या तीनों में डिफरेंस है, एंड इंडिया में हम कौन सी दो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, एंड अगेन कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। एंड कुछ आइडेंटिटीज अगेन इनको रिवाइज कर लेते हैं, हम पहले कर चुके हैं कवर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो अर्न की जा रही है वो नेशनल प्रोडक्ट की बात हो जाएगी। एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट करना है अगर हमें, हमारे पास जीएनपी की वैल्यू है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब ग्रॉस से हमें नेशनल सॉरी नेट में कन्वर्ट करना है। तो इस यहाँ से सिंपली डेप्रिसिएशन दैट इज द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम जीएनपी, विल गेट एनएनपी। Now net national product at the factor cost और the national income की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे NNP at the factor cost, it would be identity equal to national income. So this would be अगर suppose market prices पे we are having the value, तो market prices में simply indirect taxes minus indirect taxes plus minus the subsidies, हमें factor cost पे value मिल जाएगी ना। अब हम प्राइवेट इनकम की बात करें या पर्सनल इनकम की बात करें, नॉट प्राइवेट, प्राइवेट इनकम हम कवर कर चुके हैं। सो पर्सनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है पर्सनल इनकम का। सी अभी तक सो फार वी वर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम और द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को जब हम स्मॉलर कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं, तो वन कॉम्पोनेंट इज द पर्सनल इनकम। सो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, ओनली हाउस होल्ड रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम, उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। सो कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी रहेंगे, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो वी हैव टू बेसिकली डिडक्ट undistributed profits from the national income to arrive at the personal income. So this is step number 1. Undistributed profits firms के पास हैं, so उसमें से बेसिकली हमें डिडक्ट करना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को नेशनल इनकम में से, एंड विल गेट पर्सनल इनकम। देन कॉर्पोरेट टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फर्म्स, दे विल ऑल्सो हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम, क्योंकि अगेन कॉर्पोरेट टैक्स जो पे किया जाता है वो फर्म्स के प्रॉफिट का पार्ट है, एंड जो प्रॉफिट है वो हाउस होल्ड की इनकम नहीं है। तो इसलिए हम कॉर्पोरेट टैक्स का अमाउंट जितना भी फर्म्स पे कर रही हैं उसको नेशनल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम ओनली जो हाउस होल्ड अर्न करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो हाउस होल्ड्स दे आर नॉट रिसीविंग, कोई किसी टाइप की इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हाउस होल्ड रिसीव नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द प्राइवेट फर्म्स, या फिर इवन जो गवर्नमेंट के पास लोन्स एडवांस किए गए थे, तो इसलिए इस वैल्यू को भी, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हाउस होल्ड्स कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव करती हैं, तो जो वैल्यू वो लोग रिसीव कर रहे हैं वो हम एड अप करेंगे नेशनल इनकम में। सो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया, जो पर्सनल इनकम है उसमें से सबसे पहले नेशनल इनकम हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उसमें से सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि प्रॉफिट्स जो पार्ट है वो फर्म्स का पार्ट है। देन हम नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हाउस होल्ड्स करते हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड उसको पे कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करेंगे, मैंने आपको बता दिया क्यों इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और कुछ ट्रांसफर पेमेंट जो हाउस होल्ड्स को जाती है, जो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट या फर्म्स, वो हम एड अप करेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है दैट इज, या किसी स्कीम का पार्ट होती है, सपोज
जो फार्मर्स को भी पीएम किसान के अंडर फाइनेंशियल अमाउंट दिया जा रहा है, सो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर पेमेंट हो गया, सो दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर पर्सनल इनकम. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड. एंड कुछ ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स को भी कुछ लाइक टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स हाउस होल्ड्स पे करते हैं, एंड कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स है लाइक कुछ फाइन्स पे करने पड़ते हैं पर्सनल इनकम में से. तो जब आप इनकम टैक्स और कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स जो हाउस होल्ड्स को पे करना होता है, उसको अगर आप पर्सनल इनकम में से माइनस करोगे, सी नेशनल इनकम में से कैसे हम पर्सनल इनकम निकालेंगे ये हम देख चुके हैं. अब पर्सनल इनकम में से भी आप जो इनकम टैक्स है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि अब ये फाइनल अमाउंट है जो हाउस होल्ड के पास बचा. अब हाउस होल्ड या तो इसको कुछ अमाउंट इसमें से स्पेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड कुछ अमाउंट को वो सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को. तो डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है? अगेन पर्सनल इनकम जो पूरी वैल्यू आई वो हाउस होल्ड्स कंप्लीटली यूज अप नहीं कर सकते, उसमें से वो कुछ अमाउंट इनकम टैक्स में पे करेंगे, कुछ अमाउंट वो नॉन टैक्स पेमेंट्स में भी पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, एंड उसमें से फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो डिस्पोजेबल इनकम की आएगी जो हाउस होल्ड्स फ्रीली स्पेंड कर सकते हैं दो डिफरेंट एरियाज में. एंड हेयर वी हैव द प्रॉपर टेबल, जितनी भी तीन हमने मेथड्स की बात करी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन. So this is you can get in class 12th macroeconomics NCERT, and real and nominal GDP के बारे में we have already covered up in detail. So again, will not take this up again. And अगर आप लोगों को रिविजन पर्पस के लिए टेबल चाहिए तो या तो आप यहाँ पे अभी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के NCERT. All right, so that's all फॉर दिस सेशन. इसमें हमने थोड़े और टॉपिक्स जो मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे पास बच गए थे हमने वो सब कवर कर लिए हैं, एंड वी आर डन विद ऑल द 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. And again, if you have any kind of doubt, you can either email us or you can leave that in the comment section. We'll get back to you on that. And do subscribe to Ansarkari and keep watching. Thank you so much for joining us.